سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ناظم آباد میں اینٹی تھیفٹ سیل اور رینجرز نے پانی چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایف ٹی ایم لائن سے 11 چوری شدہ کنیکشن برآمد کر لیے۔ پانی چوروں کی 2 سرنگیں پکڑی گئیں اور لاکھوں روپے کا پانی بچا لیا گیا۔ مزید بتائیں گے احسن عباسی۔ جی احسن بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ واٹر کارپوریشن کے محکمہ اینٹی تھیفٹ سیل کی جانب سے جو ہے وہ انچارج اینٹی تھیفٹ سیل مشتاق احمد کی سربراہی میں گزشتہ روز کارروائی کا آغاز ہوا، جو کہ غیر قانونی پانی کے کنیکشن کی تلاش میں جو ہے وہ آپریشن کا آغاز ہوا۔ رینجرز کے ہمراہ یہ کارروائی کا آغاز کیا گیا، جو کہ آج یہ ایک بڑی کامیابی جو ہے واٹر کارپوریشن کو ملی ہے، جس میں ایف ٹی ایم کی فیڈرل ٹنگمین کی لائن سے چوری چھپ کے حاصل کیے جانے والے تقریباً 11 بتائے جا رہے ہیں کنیکشن تھے میٹھے پانی کے، جو عوام کا پانی بلدیہ ویسٹ سائٹ اور ماڑی پور جو ہے وہ ایف ٹی ایم کی لائن سے سپلائی کیا جاتا ہے، وہ بنگش ہوٹل اور آئس فیکٹری کے درمیان میں جو ہے وہ چوری کیا گیا۔ غیر قانونی کنیکشن حاصل کر کے کنڈیل جو سرنگ چلائی جاتی ہے وہ اس کی مدد سے جو ہے یہ ایف ٹی ایم کی لائن تک پہنچا گیا ہے مافیا کی جانب سے، اور اس کے بعد یہ کنیکشن جو ہے زیر زمین حاصل کیے گئے، اس کو ایک مقام پہ ندی کے پاس جو ہے وہ پہنچایا گیا، جہاں سے پمپنگ کی جا رہی تھی، سب سوائل آپریٹرز کو فروخت کیے جا رہے تھے پانی جو چوری کیا جانے والا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صنعتوں کو جو ہے واٹر کارپوریشن کا کہنا یہ ہے کہ فروخت کیا جا رہا تھا۔ یہ پانی کروڑوں روپے کا پانی ہے جو کہ چوری ہو رہا تھا۔ اس کو اطلاع ملنے کے بعد جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا گیا اور کامیاب کارروائی ہوئی ہے۔ 11 کنیکشن بتائے جا رہے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، جس میں 4 انچ کے 4 کنیکشن ہیں، 3 انچ کے کنیکشن ہے، 6 انچ کے جو ہے وہ کنیکشن ہے۔ یہ بڑا ایک نیٹ ورک منظم جو ہے وہ کام کر رہا تھا پانی چوری کا، اس کو جو ہے وہ بے نقاب کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ رینجرز کے ہمراہ جو ہے یہ ایک روز قبل کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا اور تلاش کیا جا رہا تھا کہ کنیکشن کس جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں، پمپنگ کہاں بنائی گئی ہے۔ تو آج جو ہے وہ کامیابی ملی ہے اینٹی تھیفٹ سیل کو واٹر کارپوریشن کے، جو کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، ایم ڈی واٹر کارپوریشن COO اسد اللہ خان کی خصوصی ہدایت ہے کہ پانی چور مافیا کا جو ہے وہ قلع کما کیا جائے، شہر میں عوام کا چوری ہونے والا جو پانی ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور ذمہ داری جو ہے واٹر کارپوریشن کے حکام جو ہے وہ گھر گھر پانی پہنچانے کے بعد جو ہے وہ ادا کرے، اور اسی کی ایک کڑی ہے جو شہر بھر میں رینجرز کے ہمراہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اس میں یہ بڑی کامیابی جو ہے واٹر کارپوریشن کو حاصل ہوئی ہے۔ جی ٹھیک ہے احسن، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ ڈینگی اور ملیریا کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ رمضان سال کے دوران ملیریا کے 2928 جبکہ ڈینگی کے 555 کیسز رپورٹ ہوئے، جس پر طبی ماہرین نے صبح و شام سپرے مہم شروع کرنے اور احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈینگی اور ملیریا کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ رمضان سال کے دوران ملیریا کے 2928 جبکہ ڈینگی کے 555 کیسز رپورٹ ہوئے، جس پر طبی ماہرین نے صبح و شام سپرے مہم شروع کرنے اور احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈینگی اور ملیریا کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ رمضان سال کے دوران ملیریا کے 2928 جبکہ ڈینگی کے 555 کیسز رپورٹ ہوئے، جس پر طبی ماہرین نے صبح شام سپرے مہم شروع کرنے اور احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے وفاقی حکومت خصوصاً وزیر اعظم کی توجہ صنعتی صارفین پر عائد کردہ گیس کے غیر معمولی اور مبہم بلوں کی جانب مبذول کروائی ہے، جن میں پیک آور ریٹس کے غلط اطلاق اور اضافی لیوی کے الزامات شامل ہیں۔ مزید بتائیں گے بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے وفاقی حکومت خصوصاً وزیر اعظم کی توجہ صنعتی صارفین پر عائد کردہ گیس کے غیر معمولی اور مبہم بلوں کی جانب مبذول کروائی ہے، جن میں پیک آور ریٹس کے غلط اطلاق اور اضافی لیوی کے الزامات شامل ہیں۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے وفاقی حکومت خصوصاً وزیر اعظم کی توجہ صنعتی صارفین پر عائد کردہ گیس کے غیر معمولی بلوں کی جانب مبذول کروائی ہے، جن میں پیک آور ریٹس کے غلط اطلاق اور اضافی لیوی کے الزامات شامل ہیں۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے وفاقی حکومت خصوصاً وزیر اعظم کی توجہ صنعتی صارفین پر عائد کردہ گیس کے غیر معمولی اور مبہم بلوں کی جانب مبذول کروائی ہے، جن میں پیک آور ریٹس کے غلط اطلاق اور اضافی لیوی کے الزامات شامل ہیں۔ مزید اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف خان۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے وفاقی حکومت خصوصاً وزیر اعظم کی توجہ صنعتی صارفین پر عائد کردہ گیس کے غیر معمولی اور مبہم بلوں کی جانب مبذول کروائی ہے۔ اشرف خان، بتائیے گا اس حوالے سے۔
जी, देखा जाए इस वक्त कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा है जिसमें कहा है सनती सार्फिन को गैस के गैर मामूली बिलों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कहा है कि पीक आवर रेट्स के गलत इत्तलाक से बिलों में इजाफी लेवी शामिल की जा रही है। कराची चैम्बर ने वज़ीर-ए-आज़म को खत में कहा है कि सनती सार्फिन पर बिला जवाज़ माली बोझ डाल दिया गया है। मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल में सनत पहले ही मुश्किलात का शिकार है। मामले का जामे और शफाफ जायजा लिया जाए और एक कमेटी बना के इसकी जाँच की जाए ताकि जो इजाफी बोझ है वो ख़त्म किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मेयर कराची का उलमा कराम के साथ मिलकर पोलियो मुहिम का आगाज। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि पोलियो जैसे मर्ज के खात्मे के लिए फैसला कुन वक्त आ गया है कि हम भी दुनिया के तमाम ममालिक की तरह पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त दें। आपको बता रहे हैं मेयर कराची का उलमा कराम के साथ मिलकर पोलियो मुहिम का आगाज। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि पोलियो जैसे मर्ज के खात्मे के लिए फैसला कुन वक्त आ गया है कि हम भी दुनिया के तमाम ममालिक की तरह पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त दें। मेयर कराची का उलमा कराम के साथ मिलकर पोलियो मुहिम का आगाज। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि पोलियो जैसे मर्ज के खात्मे के लिए फैसला कुन वक्त आ गया है, हम भी दुनिया के तमाम ममालिक की तरह पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त दें। मेयर कराची का उलमा कराम के साथ मिलकर पोलियो मुहिम का आगाज। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा, पोलियो जैसे मर्ज के खात्मे के लिए फैसला कुन घड़ी आ गई है, हम भी दुनिया के तमाम ममालिक की तरह पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त दें। मेयर कराची का उलमा कराम के साथ मिलकर पोलियो मुहिम का आगाज। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि पोलियो जैसे मर्ज के खात्मे के लिए फैसला कुन वक्त आ गया है कि हम भी दुनिया के तमाम ममालिक की तरह पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त दें। मेयर कराची का उलमा कराम के साथ मिलकर पोलियो मुहिम का आगाज। मजीद तफसीलात बताएंगे शुएब मुख्तार। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने उलमा कराम के साथ मिलकर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है। जामिया बनूरिया अलमिया में आज जो है पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, डीसी किमाड़ी, राजा तारिक और दीगर अफसरान जो है मौजूद थे। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि पोलियो जैसे मर्ज के खात्मे के लिए फैसला कुन वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि हम दुनिया की तरह पोलियो को हमेशा के लिए जो है वो पाकिस्तान से भी जो है इसका खात्मा कर दें। मजहबी उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पोलियो से बचाव का वाहिद हल सिर्फ पोलियो के कतरे हैं। बच्चों की सेहत और मुस्तकबिल हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वालिदैन से अपील है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। तब आपको बताएं, एबीएलसी गुलबर्ग डिवीजन ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार वरियाम खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से चोरीशुदा मोटरसाइकिल, गैर कानूनी असलहा और मास्टर की बरामद हुई है, जो मोटरसाइकिलों के ताले तोड़ने में इस्तेमाल होती थी। वरियाम खान गुलशन इकबाल थाने में तैनात था और वारदातों की सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर शनाख्त हुआ। मुलजिम के खिलाफ थाना यूसुफ प्लाजा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम चोरीशुदा मोटरसाइकिल मुनशियात फरोश को फरोख्त करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहले भी गैर कानूनी असलहा केस समेत 7 मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। एसएसपी अमजद अहमद शेख का कहना है, कानून सबके लिए बराबर है, किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। शहरियों ने डाकुओं से बचने के लिए खुद ही मेहनत शुरू कर दी। फिरोजाबाद के इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर डाकुओं ने शहरी को लूटने की कोशिश की, लेकिन शहरी ने हाजिर दमागी से काम लेते हुए डकैती की वारदात नाकाम बना दी। नाकाम वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शहरी शोरूम के बाहर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान वहां पहुंचे और मोबाइल छीनने की कोशिश की। शहरी ने हाजिर दमागी से काम लिया और दौड़ लगा दी। शहरी भागकर गाड़ियों के शोरूम में दाखिल हो गया। ये सूरत हाल देखकर मुलजिमान नाकाम होकर फरार हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाक़े की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, ताहम तहकीकात जारी है। कोरंगी कॉजवे पर कायम पुलिस चौकी को अचानक बंद करके ताले डाल दिए गए, जिसके बायस कोरंगी कॉजवे पर लूटमार की वारदातें बढ़ गईं। पुलिस चौकी चंद माह कबल तामीर की गई थी और पुलिस की टीमें रात दिन ड्यूटी दे रही थीं। शहरियों का कहना है कि कोरंगी कॉजवे पर वारदातें होती हैं। पुलिस चौकी के कयाम के बाद वारदातों में कमी आई थी। अब चौकी बंद हो गई है तो सफर करते हुए खौफजदा रहते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पुलिस चौकी को दोबारा बहाल किया जाए। शहीद सहाफ़ी इम्तियाज मीर और तुफैल रिंद के कातिल के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सिंध में 2 सहाफ़ियों के कत्ल के ऊपर PFUJ और KUJ की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जावेद चौधरी साहब, वो मौजूद हैं। देखिए, सहाफ़ी जो है वो हमेशा हर हुकूमत को खड़कता रहा है और अंदरून सिंध और जो
रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ तो हुकूमत के अलावा जो वहाँ जो बासर शख्सियात हैं, वडेरे हैं, उनकी जानिब से जुल्म और सितम और साफ़ियों को टारगेट करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा को जो मक्तल गाह थी साफ़ियों की, बहुत अरसा रही, बहुत सारे साफ़ी हमारे दोस्त वहाँ शहीद हुए, उस मक्तल गाह को इंटेंशनली और सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे लगता है कि उसको सिंध लाया गया है। और सिंध में जहाँ पहले ही सिंध जो है इस टाइम वो अफरा तफरी का और दहशत गर्दी का दीगर मामला का शिकार है, उसमें दोबारा से वो आग लगाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें बतौर ख़ास साफ़ी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि साफ़ी वो तबका है जो माशरे की नब्ज़ पे हाथ रखता है। माशरे की नब्ज़ में हाथ रखने वाले को अगर टारगेट करेंगे तो बाकी साफ़ी उस पर रिएक्ट करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि साफ़ियों से हुकूमत भी जो है वो सफारा होना चाह रही है। उसके साथ साथ वो चाहती है कि जी के पीक इस हद दर्जे तक जाए कि जी के मामलात जो है वो साफ़ी कहेंगे जी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो फैल रिंद और इम्तियाज़ मीर के मर्डर को आपके सामने देखे कितने दिन हो गए, और सखर डिवीज़न जो है वो खुसूसी तौर पे अंदरूनी सिंध में इसका शिकार रहा है। वहीं से हमेशा आती कंप्लेन। हमारी ये जो रिक्वेस्ट, हमारी जो दरख्वास्त है हुकूमत से और एक अरबाब इक़्तिदार इख्तियार से कि आप बराए मेहरबानी आम बंदा भी अगर मर्डर हुआ है तो उसके कत्लों को सामने तो लाए ना आप। इवन कि आप साफ़ियों के अगर कातलों को सामने नहीं लाना चाह रहे, उस पर प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रहे, PFJ से कुछ नहीं शेयर कर रहे, तो इसका मतलब है आम लोगों के साथ आप क्या करते होंगे। बहरहाल हमारा ये बिल्कुल बीइंग असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल PFJ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज सिर्फ एहतजाज किया और ये नुक्ता इंतहा है, आज के बाद एहतजाज सिर्फ नहीं होगा, अब हम पार्लियामेंट हाउस के सामने दीगर जगह पर जाएंगे और उससे पहले हुकूमत इन कम साफ़ियों के कातलों को सामने लाए और इन्वेस्टिगेशन PFJ से शेयर कर। देखिए बिल्कुल सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जावेद चौधरी साहब। तमाम सहाफ़ी बरादरी का ये एहतजाज जो है इम्तियाज़ मीर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए है। इनका कहना है कि अब एहतजाज प्रेस क्लब की हद तक नहीं रहेगा, अब एहतजाज जो है वो ऐवानों तक जाएगा। जी, शहर कायद में बिजली और गैस के मसाइल बदस्तूर बरकरार हैं। औरंगी टाउन, कोरंगी, ओल्ड सिटी एरिया और मवाज कोट समेत कई इलाके शदीद मुतासर हैं। गैस की बंदिश के बायस शहरी लकड़ी और महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे उनका मुआशी बोझ मज़ीद बढ़ गया है। तर्जुमान SSGC के मुताबिक रात 10 से सुबह 6 बजे तक लोड मैनेजमेंट की जाती है ताकि दिन के औकात में प्रेशर बेहतर रहे। दूसरी जानिब बिजली की बंदिश ने भी शहरियों का सुकून छीन लिया है। लेकिन तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की बिला ताअत्तुर फराहमी जारी है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की रहायशी सोसाइटी में पानी की फराहमी में मुश्किलात पर बेबसी का इजहार कर दिया। CEO अहमद अली सिद्दीकी ने स्टील मिल्स के कॉर्पोरेट सेक्रेटरी मोहम्मद अस्कर शाहीन को खत लिख दिया। कहा 120 KVA का बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब न होने के बायस पानी की सप्लाई शुरू नहीं की जा सकती। खत में वाज़ेह किया गया कि बिजली लगने के बाद नई पानी की लाइन के जरिए फराहमी शुरू कर दी जाएगी। मोटर बोर्ड टीम के मुताबिक कमिश्नर ऑफिस इजलास में बिजली की दस्तयाबी का दावा गलत निकला, क्योंकि मौके पर दौरे के दौरान बिजली मौजूद नहीं थी। कॉरपोरेशन का कहना है कि जैसे ही बिजली फराहम की गई, रहायशियों को पानी की फराहमी फौरी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान आइंदा 5 सालों में मेडिकल डिवाइसेस और अद्वियात की बरामदात को $30 अरब तक पहुंचाने का हदफ रखता है। ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का। उनके मुताबिक मेडिकल डिवाइसेस के रेगुलेशन के अमल को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया है। सिर्फ 20 दिन में लाइसेंस हासिल किया जा सकेगा। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। मकामी मेडिकल इंडस्ट्री की तरक्की की जानिब अहम कदम। हुकूमत ने बरामदात का हदफ $30 अरब मुकर्रर कर दिया। लाइसेंस के हुसूल के लिए ऑनलाइन निज़ाम भी मुतारिफ करा दिया गया। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में मेड इन कराची के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मकामी मेडिकल इंडस्ट्री की तरक्की और खुद इन्हसारी को फ़रोग़ देना था। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा इस वक्त पाकिस्तान की मेडिकल डिवाइसेस और अद्वियात की बरामदात $1 अरब से भी कम है। ताहम हुकूमत ने आइंदा 5 सालों में इसे $30 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है। आप कहते हैं $3 बिलियन नहीं, 300 मैं आई से नो, ये तो कोई टारगेट ही नहीं हुआ, तो हम पर कोई चैलेंज ही नहीं आया। तो इंशाअल्लाह ताला वी हैव सेट अप, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज विद द इंडस्ट्री, विद द सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्री, इंशाअल्लाह ताला वी हैव सेट अ टारगेट ऑफ $30 बिलियन एक्सपोर्ट इंशाअल्लाह ताला 5 years डाउन द लाइन। आज से लेकर अगले 5 सालों में हम इसको 30 बिलियन अचीव करें। मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि निज़ाम में शफाफियत और आसानी के लिए हमने ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ कराया है, जहां सिर्फ 10 मिनट में दरख्वास्त जमा हो जाएगी और 20 दिन के अंदर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। क्वालिटीज को
सुप्रीम रखें, फिर देखें कि आपको अल्लाह ताला जो है वो कहाँ लेकर जाता है। Why would somebody, कोई आपको अदरवाइज हेल्प नहीं कर सकता। अपनी रिसर्च को, अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, दुनिया में जो जदीद चीज़ें हैं उसको बरूए कार लाकर आपने अपनी क्वालिटीज़ को एनहांस करना है। एंड आई वुड बी योर बिगेस्ट सपोर्टर, दिस गवर्नमेंट विल बी योर बिगेस्ट सपोर्टर। वफाकी वज़ीर सेहत का मजीद कहना था कि उन्हें शिकायत मौसूल हुई है कि सिरिंज समेत बास मेडिकल डिवाइसेस पर इजाफी रकम वसूल की जा रही है, जिसके सद्देबाब के लिए वजारत सेहत फौरी इक़दाम कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के हमरा शुएब मुख्तार, सिटी 21। एक कदम बढ़ाएं, साहिल को साफ बनाएं, इसी अज़्म के साथ सीबीयू पर क्लीन अप ड्राइव का इनेकाद किया गया। मुहिम का मकसद पोलियो से आगाही के साथ साहिल के हुस्न को बरकरार रखना था। रोटरा क्लब कराची सी पैक बीच व्यू की सदर अरीज रजा का कहना था कि शहरी साहिल पर जरूर आएं, लेकिन कचरा फैलाने से गुरेज करें। देखिए इस रिपोर्ट में। कराची के साहिल पर सालाना बीच क्लीन अप ड्राइव का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद माहौलियाती आगाही को फरोग देना, पोलियो के खिलाफ शऊर उजागर करना और साहिली हुस्न को बरकरार रखना था। रोटरी क्लब कराची सी पैक बीच व्यू की सदर अरीज रजा का कहना था कि शहरी तफरी के लिए साहिल पर आएं, मगर कचरा फैलाने से गुरेज करें। साफ माहौल ही सेहतमंद मुआशरे की पहचान है। हमारा मकसद यही है कि हम बीच क्लीनअप ड्राइव करें, बीच को साफ रखें और लोगों को पैगाम दें कि वो बीच को साफ रखें, ना कि कचरा फेंकें, सफाई की तरफ जाएं। जो हमारे SDGs हैं 15 ग्लोबल, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर तौफीक बोले कि पोलियो आगाही मुहिम में हर शहरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को जल्द अज जल्द पोलियो से पाक मुल्क बनाया जा सके। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिससे कई बच्चे जो है वो मुतासर होते हैं। पूरी दुनिया से जो है ना वो पोलियो ख़त्म हो चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जिनमें पोलियो जो है ना वो रह गया है। हमारी कोशिश ये है कि एज अ रोटेरियन हमारी कोशिश ये है कि हमें पोलियो फ्री पाकिस्तान करना है। मुहिम में रोटरी क्लब के अरकान और दर्जनों रजाकारों ने भरपूर हिस्सा लिया। शुरका ने साहिल से प्लास्टिक बोतलें और कचरा उठाकर सफाई का अमली मुजाहिरा किया। जब अल्लाह ने कुदरती हमें गिफ्ट दिया है समंदर का, तो इस पर जो लोग आते हैं उनको भी चाहिए और सफाई हो इसकी, इस पर लोग ख्याल करें। अगर हम पिकनिक पे भी आते हैं तो पूरा दिन एंजॉय करने के बाद जब हम जाने लगे तो अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ आधा घंटा या घंटा अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ दें तो 1 साल के अंदर हमें इस तरह की ड्राइव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रजाकारों ने शहरियों से अपील की कि वो साहिल को साफ रखने में अपना हिस्सा डालें, ताकि कराची की खूबसूरती बरकरार रहे। गुलशन मेहमान में ईसा लेबॉर्ट्री के एक और ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। लेबॉर्ट्री इंतजामिया और इलाके के MPA अली अहमद जान कहते हैं कि लेबॉर्ट्री इलाके की बहुत ज़रूरत थी, जो कि अब पूरी हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन मेमार में, जहां पर ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से एक और अच्छा इकदाम सामने आया है कि यहां पे भी लेबॉर्ट्री कायम कर दी गई है, जहां पर जदीद टेस्ट की सहूलत इंतहाई कम फ़ीस में फराहम की जाएगी। तो इस हवाले से यहाँ पे तकरीबात भी मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। और तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं इलाके के MPA अली अहमद जान। उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से कितना अच्छा लग रहा है कि इनके इलाके में ईसा लैब ने अपनी ब्रांच भी यहाँ पे इफ्तिताह किया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे सर, कितनी अच्छी सहूलत है कि यहाँ पे अच्छे तरीके से जो टेस्ट की सहूलत है वो भी यहाँ पे फराहम करना शुरू कर दी, क्या कहेंगे? इससे पहले ईसा लेबॉर्ट्री हमने मेट्रोविल में इनके साथ मिलके हमने वहाँ पे खुलवाई, जो वहाँ के लोग उससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बहुत कम फीस में बहुत अच्छा इनका जो रिज़ल्ट है वो वहाँ आया। फिर उसके बाद हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि जो मेरा हलका है गुलशन मेमार, वहाँ गुलशन मेमार के जो लोग हैं वो टेस्ट के लेबॉर्ट्री के टेस्ट के लिए एक्सरे ECG का भी यहाँ पे सहूलियत मौजूद है। इसके लिए दूर दराज इलाकों में जाते हैं और ख़ुसूसन ये हमारे गुलशन मेमार के जो आसपास हमारे गोड्स और कच्ची आबादी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उन सब के सहूलियात के लिए मैंने ईसा लेबॉर्ट्री को रिक्वेस्ट की कि आप गुलशन मेमार में यहाँ पे अपना यहाँ पे एक ब्रांच खोलें, तो उन्होंने खोला है। बहुत मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला यहाँ के लोगों को के लिए ये बहुत बड़ी सहूलियात होगी और यहाँ के लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे कि MPA साहब ने तफसीली बताया कि इलाके की आवाम की फलाह बहबूद के लिए यहाँ पे उनके लिए तिबी सहूलत फराहम करने के लिए यहाँ पे लेबॉर्ट्री खोली है। डॉक्टर फरहान ईसा साहब जो हैं वो इस सरबराह भी हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स एंड अस्पताल के एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जिनकी जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया कि इलाके की आवाम को मज़ीद बेहतर अंदाज में सहूलत फराहम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी
आर्ट्स काउंसिल में सिंधी जुबान के अदीब डॉक्टर सिकंदर मुगल की किताब जहानत के इर्तिका की तकरीब रुनमाई। तकरीब में इल्म दानिश से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राहील बेग से। जी राहील, बताइएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां लोक विरसा कमेटी के जानिब से आज एक खूबसूरत किताब की तकरीब रुनुमाई मुनक्किद की गई, जिस किताब का नाम है जहानत जी इर्तिका। सिंधी ज़बान की ये किताब है और इस वक्त सिंधी ज़बान के अदीब और मुसन्निफ हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और डॉक्टर सिकंदर मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, और जिस तरह से किताब का जो नाम है इर्तिका, जिंदगी, साइंस और ये जो सफ़र, हमारी ज़िंदगियाँ इन तीनों चीज़ों के बीच में ही घूम रही हैं। ये साइंस के मौजू पर है किताब लिखी हुई है, जो बताती है कि इंसान की इर्तिका और दूसरी जो तख्लीक़ात हैं उनकी इर्तिका किस तरह हुई और ज़िंदगी का सफ़र किस तरह हुआ, और फिर साइंस ने किस तरह तरक्की की। उर्स्तु ग्रीक साइंस से लेकर न्यूटन और आइंस्टाइन तक ये सफ़र कैसा रहा और उस पर ये पूरा तबसरा है। बिल्कुल। क्या कहेंगे जो कायरीन है, ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है, उन्हें क्या कुछ जानने का मौका मिलेगा अपनी हिस्ट्री के बारे में, और किस तरह से जो इर्तिका है तमाम चीज़ों का वजूद में आया, कुछ सब कुछ जानने का मौका मिलेगा? जी जी बिल्कुल मिलेगा। जो साइंस के तलबा हैं वो अगर इन मौज़ूआत पर और ये किताब ख़ास तौर पर पढ़ें तो उनको काफ़ी जो चीज़ें हैं इर्तिका के मुतल्लिक़, ज़िंदगी के मुतल्लिक़, इंसान के इर्तिकाई सफ़र के मुतल्लिक़ वो समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल। इर्तिकाई ज़िंदगी के हवाले से लिखी जाने वाली इस किताब में साइंस की वो अहम मालूमात है जो कि नौजवान नस्ल पढ़कर मुस्तफ़ीद हो सकती है। लोक विरसा कमेटी की जानिब से आज तकरीब रुनुमाई मुनक्किद की गई, जिसमें इल्म, अदब और इल्म दानिश से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। जी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का आज़म, लियारी टाउन और ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का साथ चलने का आज़म। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के आला सतही वफ्द का लियारी का दौरा। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के वफ्द ने म्यूनसिपल हुकाम के साथ साथ मुख्तलिफ कम्यूनिटी के नुमाइंदों और हुनरमंद ख़वातीन और दस्तकारों से मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए लियारी टाउन और ग्रीनविच यूनिवर्सिटी ने साथ चलने का फैसला किया है। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के आला सतही वफ्द ने लियारी टाउन का जो है वो दौरा किया है। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के वफ्द ने म्यूनिसिपल हुकाम के साथ साथ मुख्तलिफ कम्युनिटी के नुमाइंदों और लियारी की हुनरमंद ख़वातीन दस्तकारों से जो है मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर जो है मुशावरत की गई है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान का कहना था कि तालबात और फनकार सिलाई व दस्तकारी के जरिए इस इलाके के सकाफती विरसे की बहाली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के वक्त का लियारी का दौरा लियारी की फैशन, सकाफत, आर्ट, डिजाइन और खेलों की सलाहियतों को उजागर करने की जानिब अहम कदम है। लियारी के मकीनों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए जाएंगे। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। किंग ऑफ द रिंग की जंग, एक और टाइटल पाकिस्तान के नाम। नौजवान बॉक्सर समीर खान ने यूबीओ यूथ वर्ल्ड बैंटम वेट चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान को पहली बार टाइटल दिलवा दिया। बैंकॉक के बॉक्सिंग रिंग में भारत को शिकस्त देकर समीर खान ने तारीख रकम कर दी। वो इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुमताज जिगरी के साथ मौजूद हैं। जी मुमताज, बताइएगा उनका क्या कहना है। देखिए जी, मिंटम वेट में पाकिस्तान में बड़ा जो है नाम कमाया है। पाकिस्तान के बॉक्सर समीर खान ने हाल ही में भारत के प्लेयर को जो है शिकस्त देकर पाकिस्तान के नाम जो है एक टाइटल हासिल कर लिया। समीर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, टाइटल भी इसके पास मौजूद है, इनसे बात करेंगे। समीर, बताएगा इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी छोटी सी उम्र में आपने कामयाबी हासिल की है, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे और नेक्स्ट जो है आपकी क्या प्लान है, बताइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पाकिस्तान का भी और अपने मैकडॉनल्ड का भी कि उन्होंने मुझे इस फाइट के लिए अप्रोच किया और मुझे एक चांस दिया और मैं ये टाइटल जो है पाकिस्तान के लिए लेकर आया पहली बार। इससे पहले भी पाकिस्तानी बॉक्सर जा चुके हैं और रिसेंटली 2 दिन पहले भी इस टाइटल को डिफेंड करने की कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तानी बॉक्सर ने वो डिफेंड नहीं हुआ। आई एम फर्स्ट पाकिस्तानी टू डिफेंड दिस टाइटल अगेंस्ट इंडिया और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। और आगे मेरे बहुत बड़े ख्वाब हैं। मैंने पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में 5 बॉक्सर के अंदर अपनी जगह बनानी है और मुझे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और मेरी हुकूमत से और आगे अपील है कि मुझे इसी तरह सपोर्ट किया जाए और मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी दुआओं से और अपनी
मेहनत से और उनकी जितनी दुआएं थी वो रंग लेकर आई और मैं ये टाइटल पाकिस्तान के लेकर आया। और मेरा आगे एक और मेरी फ़ाइट आ रही है, मैं अभी उसके लिए पूरी ट्रेन करूँगा अपने आप को और पूरी ट्रेनिंग के लिए साथ हूँ। WB एशिया टाइटल है, मुझे वो भी डिफेंड करना है जो आज तक पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया, और इस टाइटल को मैंने फिर से डिफेंड करना है। जी बिल्कुल, देखें समीर खान ने बड़ा नाम जो है हासिल कर लिया है। 52 किलो की जो कैटेगरी है उसके अंदर इंडिया को शिकस्त देकर जो है बड़ा टाइटल जो है अपने नाम किया। और उनका ये कहना था उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना कि मैं जो है तैयार हूँ और नेक्स्ट जो है पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जो है रोशन करने के लिए तैयार है। जी, कराची में 3 रोज़ा लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो जारी है। पाकिस्तान लाइफस्टाइल के MD ज़ारा फैसल कहती हैं कि कराची के हज़ारों शहरी फर्नीचर एक्सपो में शिरकत करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो जो है वो जारी है। आज दिन भर हमने इस एक्सपो को देखा और बहुत बड़ा शानदार एक्सपो है। इसमें ख़ास तौर पे शहरियों की जितनी बड़ी शिरकत है, तो आम तौर पे एक्सपोज़ में इतनी शिरकत नहीं होती और दिन भर लोग आते हैं जाते हैं, ख़रीदारी भी करते हैं। फर्नीचर, ख़ास तौर पे फर्नीचर और घर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग से वाबस्ता दीगर अशिया भी इस जो है फर्नीचर एक्सपो में मौजूद हैं। इसकी MD हैं पाकिस्तान लाइफस्टाइल की ज़ारा फैसल, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ारा साहब, इस एक्सपो के बारे में बताइएगा। इसमें हमने देखा है 3 हाल हैं, वैसे तो कितने शिरकत है, कितने स्टॉल्स हैं, लोगों का क्या रिस्पांस है? जी, अस्सलाम वालेकुम। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का ये हमारा 123वां एडिशन हो रहा है। हम चूँकि हर साल यहाँ पे एनुअली आते हैं, हमारा ये ग्रैंड इवेंट है, तो इस दफ़ा हमने ये इवेंट 3 हॉल्स में किया है। पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथन है। लगभग 125 एग्ज़िबिटर्स पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं जो यहाँ पे एक्सपो कर रहे हैं और हर प्रोडक्ट के ऊपर अप टू 50, 60, 70% के शानदार डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। पब्लिक का रिस्पांस क्या है? बेहतरीन। पब्लिक, कराची की पब्लिक जो है वो इस इवेंट का इंतज़ार करती है और इसको हम इस तरह से इवेलुएट करते हैं कि हमारे फेसबुक पेज के ऊपर हमारे फ़ोन कॉल्स जो हम रिसीव करते हैं नंबर्स के ऊपर, UN नंबर्स पे लातादाद कॉल्स होती हैं कि ये इवेंट कब आ रहा है, कब आएगा। और अब आज दूसरा दिन है और रश आप माशाल्लाह देख रहे हैं, सुबह 10 बजे से लॉन्ग क्यूज़ लग जाती हैं और तीनों हॉल्स में बेहतरीन रिस्पॉन्स है पब्लिक। अच्छा, कल आखिरी दिन है इसका? जी बिल्कुल, कल आखिरी दिन है। कल 12 तारीख है, कल इतवार का दिन है और कराची के लोगों के लिए हम ये इतना बड़ा इवेंट जो है, इतनी बड़ी सहूलत लेके आ रहे हैं और कराची के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर ज्वाइन करें। ये आपकी बेहतरीन फैसिलिटी के लिए, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। सुना आपने ज़ारा फैसल साहबा को जो बता रही हैं कि ये 3 रोज़ा जो एक्सपो है, फर्नीचर एक्सपो पाकिस्तान का, और ये बहुत बड़ा है। इसमें पूरे पाकिस्तान के एग्ज़िबिटर्स ने इनके बकौल शिरकत की है और इन तमाम लोगों ने कोई 124 से ज़ायद बता रही हैं कि स्टॉल्स हैं। 3 एक्सपो सेंटर के हॉल्स हैं, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि शहरियों की शिरकत बिल्कुल बेतहाशा है और लोग यहाँ बहुत बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन की मैंने देखा है कि इस एक्सपो में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। जी।